کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پرانی کتابوں کی دنیا میں ہمارا سفر ابھی جاری ہے۔ یہاں جگمگاتے ہوئے مغرب میں بیٹھ کر ہم کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہماری چشم تصور 100-150 سال پیچھے چلی جاتی ہے، اور ہم کلکتے، دہلی، لکھنؤ، مدراس اور آگرے کی ان گلیوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی تاریک کوٹریوں میں لوگوں نے پرانی طرز کے چھاپے خانے لگا رکھے ہیں کہ جن کے انجر پنجر اب ہل رہے ہیں۔ ان پر پتھر کی بڑی سی چکنی سل جمی ہوئی ہے، اور اس سل پر لکھے ہوئے الٹے حرف اس اندھیرے میں مشکل سے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بزرگ جن کی کمر دوہری ہوئی جاتی ہے، جن کی قمیص پر چھاپے خانے کے تیل کے داغ ہیں، اور جن کے لباس کے پیوندوں کی آڑ سے ان کی سفید پوشی جھانک رہی ہے، جن کے چشمے کی کمانی ٹوٹ گئی ہے تو اس کی جگہ انہوں نے چھاپے کی سیاہی سے اٹا ہوا دھاگا باندھ لیا ہے۔ وہ چمڑے کی بھاری بھرکم بیلن سے چھاپے کی سل پر سیاہی پھیرتے ہیں، پھر اس سل کے اوپر ایک کاغذ بچھاتے ہیں، پھر اس کاغذ کے اوپر موٹے کاغذوں کی ایک تہہ جماتے ہیں اور ایک ہتھا گھما کر اوپر سے دباؤ ڈالتے ہیں۔ قریب کھڑا ہوا ایک چھوٹا سا لڑکا، جو شاید محلے کی کسی عزت دار بیوہ کا اکلوتا بیٹا ہے، چھاپے کی سل کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دھکیلتا ہے، پھر سل کے اوپر سے وہ بوجھ اٹھایا جاتا ہے اور اس کے نیچے سے چٹکیوں سے کاغذ کے 2 کونے پکڑ کر اسے آہستہ آہستہ اٹھایا جاتا ہے۔ تب کہیں جا کر ہماری کتاب کے 4 یا 8 چھپے ہوئے صفحے نکلتے ہیں۔ اس طرح چھپتی تھیں کتابیں ہمارے آبا کی کہ انہیں آج ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو دل سی پارا ہوتا ہے۔ اپنے اس پروگرام میں آج آپ کے لیے ہم 100-125 سال پرانی ویسی ہی 3 کتابیں لے کر آئے ہیں۔ یہ بھولی بسری کتابیں ہمارے ماضی کی نشانیاں ہیں۔ انہیں لکھنے والے، انہیں پڑھنے والے، وہ سب اب خاک تلے سو رہے ہیں۔ وقت کی گرد نے ان کتابوں کو بھی آن دبوچا تھا، مگر اس سے پہلے کہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی گرد جھاڑیں، ان کی یادیں تازہ کریں، خود بھی پڑھیں اور آپ کو بھی پڑھ کر سنائیں۔ یہی ہمارے اس پروگرام کا بنیادی خیال ہے۔ تو آئیے آج کی کتابوں کی باتیں کریں۔ سب سے پہلے ہے ایک منظوم کتاب، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ان دنوں ہم پچھلی صدی کی منظوم کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے مجموعہ خیال۔ مجموعہ خیال اب سے تقریباً 98 سال پہلے سن 1879 میں بمبئی میں چھپی تھی۔ اس میں 6 شاعروں کا کلام جمع کیا گیا تھا۔ اس کتاب کی طرح وہ شاعر بھی اب گمنام ہیں، لیکن غالباً اپنی زندگی میں بڑے مقبول رہے ہوں گے۔ ان کے کلام میں وصال اور جدائی، تمناؤں اور آرزوؤں، حسرتوں اور مایوسیوں کی باتیں نہیں تھیں۔ ان کے کلام میں عشق تھا، مگر کسی جھروکے سے جھانکنے والی نازنین کا عشق نہیں۔ مجموعہ خیال کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جو نظم ہے وہ خدا سے لو لگانے والے جوگی بیراگی گاتے ہوں گے۔ اس کا ایک نمونہ تو ہم ابھی آپ کو سنائیں گے، لیکن پہلے ان 5 شاعروں کا تذکرہ ہو جائے جن کے گیت اس کتاب کی لڑی میں پروئے گئے ہیں۔ وہ تھے فقیر محمد تیغ، غلام حسین ظریف، عبداللہ خان خنجر، محمد علی میر اور کاشیگر بنارسی۔ یہ لوگ کون تھے، یہ معلوم کرنے کے لیے بڑی چھان بین کی ضرورت ہے، مگر ان لوگوں کا کلام کیسا تھا، یہ جاننے کے لیے کہیں دور جانے کی حاجت نہیں۔ مجموعہ خیال کے شروع ہی میں کاشیگر بنارسی کی ایک نظم ہے جس میں اس پوری کتاب کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیجئے ہم آپ کو مجموعہ خیال کی وہی نظم پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس میں تصوف کا رنگ بھرا ہے، معرفت کے راز چھپے ہیں۔ اگر آپ ان رنگوں کو پہچانتے ہیں اور ان رازوں سے واقف ہیں تو یہ نظم آپ کو بڑا لطف دے گی۔ لیجئے سنیے 98 سال پرانی کتاب مجموعہ خیال سے کاشیگر بنارسی کا ایک خیال۔ مہر جو اس کی ہووے تو وہ مور و مار سے ڈرے نہیں، چینٹی پر ہاتھی چڑھ بیٹھے تو وہ چینٹی مرے نہیں۔ وہ چاہے تو شراب کو آب حیات کا جام کرے، خوشی جو اس کی ہوئے تو وہ کفر کو بھی سلام کرے۔ نمازیوں سے خفا رہے، رندوں کے ساتھ کلام کرے، بت خانہ مسجد کو توڑ کے مے خانہ سرنام کرے۔ ایسے ایسے کام تو اس کے سوا اور کوئی کرے نہیں، چیٹی پر ہاتھی چڑھ بیٹھے تو وہ چیٹی مرے نہیں۔
डाले कोई बारूद में आतिश तो वो दारू जले नहीं, 1000 मन की चक्की हो पर एक मूंग को दले नहीं, पानी पर तैरे वो पताशा, लाख बरस तक गले नहीं, उसकी कुदरत के आगे कुछ जोर किसी का चले नहीं, सब उसके नज़दीक हैं और कोई बात तो उससे परे नहीं, चींटी पर हाथी चढ़ बैठे तो वो चींटी मरे नहीं, बांधे कच्चे सूत से जिसको वो कैदी क्यों कर छूटे, मदद जो उसकी हो तो आहन की संकल दम में टूटे, बड़े बड़े रुस्तम को कायर मार के सरतापा लूटे, पत्थर पर राई दे मारे तो पहाड़ दम में फूटे, सब कुछ वो करता है पर अपने जिम्मे कुछ धरे नहीं, चींटी पर हाथी चढ़ बैठे तो वो चींटी मरे नहीं, गलियों के पत्थर को वो चाहे हीरे मोती लाल करे, मिट्टी को इक्सीर बना एक दम में माला माल करे, देवी सिंह कहे बनारसी के ख्याल पे कोई ख्याल करे, क्या ताकत है काल की जो फिर उसका बागा बाल करे, ऐसा सुखन सुनने से दिल हर चंद किसी का भरे नहीं, चींटी पर हाथी चढ़ बैठे तो वो चींटी मरे नहीं। शायद इसी पर नज़ीर अकबर आबादी ने कहा था कि खुदा की बातें खुदा ही जाने। और अब आइए उस इश्क की जानिब जो हमारे शायर की रगों में लहू बनकर दौड़ता रहा है, यानी वही झरोके से झांकने वाली नाज़नी का इश्क। और इस सिलसिले में आज एक दिलचस्प किताब हमारे हाथ लगी है जो उर्दू शायरी में अपनी नौयत का पुरलुत्फ तजर्बा है। इस 28 सफ़ों की किताब का उन्वान है क़िस्सा-ए जानी बेगम। क़िस्सा-ए जानी बेगम दक्कनी उर्दू में है, मगर किसने लिखी थी और किस दौर में लिखी थी ये मुझे मालूम ना हो सका। अलबत्ता इसका जो नुस्खा यहाँ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है वो पूरे 100 साल पहले 1877 में मतबा-ए हैदरी बम्बई में छपा था। इस मतबे ने, जिसे खुदा ने कहीं से बड़ा उम्दा खुशनवीस अता किया था, उस दौर में दक्कन के शायरों का बहुत सा कलाम छापा था। क़िस्सा जानी बेगम भी इसी मतबे में छपा और शायद सिर्फ एक ही मरतबा छपा। इसकी वजह आप पर अभी वाज़ेह हुई जाती है। इस क़िस्से के मुसन्निफ़ ने 2 काम किए हैं। एक तो इस क़िस्से को बहुत तवील बहर में लिखा है, यानी इसका एक मिसरा या बंद कई कई सफ़ों तक चला जाता है। इस तवील बहर का सिर्फ एक बंद पढ़ने में बाज़ औक़ात 7-8 मिनट सर्फ हो जाते हैं, तब कहीं जाकर काफ़िये की नौबत आती है। और दूसरी ये कि क़िस्से के मुसन्निफ़ ने वो पर्दा उठा दिया है जो वस्ल की दास्तानों पर उमूमन पड़ा रहता है। इसे आप चाहें तो बेहिजाबी या फहशगोई कह लें और चाहें तो इसे अदब में इनकलाब का नाम दे दें। बहरहाल ये फ़ैसला करने के लिए आपको ख़ुद लंदन आकर ये किताब पढ़ना होगी, क्योंकि उस गुमनाम मुसन्निफ़ का हौसला हमारे हिस्से में नहीं आया है। यूँ जानी बेगम का यह क़िस्सा बेसरोपा है। शायर को इसकी कहानी से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं, उसने शेरगोई का सारा ज़ोर इसकी तवील बहर पर सर्फ कर दिया है और इस ज़ोर आवरी की छोटी सी मिसाल हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, यानी 100 साल पुरानी किताब क़िस्सा-ए जानी बेगम का एक निस्बतन मुख्तसर मिसरा पढ़कर हम आपको सुनाते हैं। और मेरी जान सुनो बहना, किसी आगे न ये कहना, बाला खाने पे चढ़ी थी, जा झरोके में खड़ी थी, जो नन्हियाँ और बड़ियाँ थीं अपने कोठे पे चढ़ियाँ थीं, देखने सैर खड़ियाँ थीं, आई वैसे में सवारी, दल हशम साथ था भारी, फौज आती थी 2 रस्ता, सिपाही सब में आबस्ता, सिपरो तेग वजमधर, कमानो तरकशो खंजर, अपने अपने मसलू पर परे सफ बांध बराबर, घोड़े से घोड़ा लगाकर इस तरह से थे सरासर, आगे डंकाओ निशां था, खूब हर एक जवां था, घोड़े सरदारों के कोतल, सुनहरी साज मुकल्लल, जीन जरदोजी थी झलझल, पालकियों पर खासी मखमल, खास बरदार थे आगे, बलछी बरदार थे पीछे, घुंघरू पाँव में थे बजते, खिदमतगार उनके थे अच्छे, एहतमामी आगे चलते और बढ़े जाओ जो कहते, कपड़े मेवत के थे खासे, अरबी बाजते तासे, सोने रुपए के ले आसे, चोबदार चलते अदा से, आई जब खुद की सवारी, मुरस्सा जर की अमारी, बैठा था खोल के छाती, पीछे थे महल के हाथी, गले में हाथी के हैकल और घटा टोप मुकल्लल, वैसी अमारी के अंदर शेर नर फील के ऊपर, डंड मुगदल से रहे बन, पहलवां की सी थी गर्दन, दाग चेचक के थे मुंह पर,
जैसे चूनियां है जड़त पर, चमकती ऊंची पेशानी, नेक बख्ती की निशानी, तंग जामा था बदन में, सुरमा खींचा था नयन में, जाफरानी सजा फेंटा, उस पे सरपेच लपेटा, तुर्रा दस्तार पे बाजर, कुल्हार सर पर था मुशज्जर, जरी का पटका था भारी, उस पे थी खासी कटारी, क्या कहूँ बहना प्यारी, देखते जान को वारी, आंख मेरी तो लगी वहीं, सूरत मेरी तो बंधी वहीं, यक बयक चार नजर हो, इश्क मेरे से खबर हो, फिर तरफ मेरे वो झुक कर और खवासों पर नजर कर, कहा वो देख मदारी, उस झरोके में वो नारी, लगी मुझ बहुत सी प्यारी, रख नजर तू उसी घर में, इस हवेली को नजर में, सुबह को या तुझे आना, कुछ संदेशा है ले जाना, अपने घर उनको बुलाना, कुछ पकाना और खिलाना, इत्र पान आगे धराना, घड़ी दो एक पिठाना, उनको कुछ राग सुनाना, बाग में सैर कराना, बातें कह कह के बहलाना, पीते कुछ हो तो पिलाना, भेद ये सबसे छुपाना, उसे रुसवा न कराना, है बुरा आज जमाना, तू हमारा है यगाना, कुछ नहीं हमसे बेगाना, तुझसे क्या भेद छुपाना। इतनी बात उसको सुनाकर वहां से हाथी फिराकर आ झरोके के बराबर, वहां हाथी को खड़ा कर पानी पीने को मंगाया, खिदमतगार आगे ले आया, सिपाही सारे तो थम गए, खड़े जिस जाए पे जम गए, वहां सुराही का मंगाना, खड़े रहने का बहाना, देखा खुद और दिखाना, किसी को खुद पे रिझाना, प्यास पानी की न थी कुछ, लगा मुंह को न पिए कुछ, हाथ में पानी को लेकर सुराही फिर उसे देकर, हाथ आहिस्ता उठाकर और नजर सबकी बचाकर, जरा एक उसको छिड़क दिए, पानी ले उस पे छिड़क दिए, बूंदे कई जाए के गिरियां, मुंह पे जो उनके हैं पड़ियां, भीग गई सब मेरी पड़ियां, जैसे सावन की थी झड़ियां, तब जरा मुंह कती खोली, इतना मैं उन सती बोली, मेरी सौगंध है तुमको, भूल मत जाइयो हमको। ऐसे गर्दन की झटक से, इश्कबाजों की लटक से, कहा कुछ गम न करो तुम, जमा खातिर को रखो तुम, सुबह खिदमत में तुम्हारी, आन पहुंचेगा मदारी। ये था किस्सा जानी बेगम। ये पूरी किताब इसी अंदाज में लिखी गई है। इसमें तकरीबन 10 मिसरे हैं जो लफ्ज़ सिधारी, संवारी, सवारी, मदारी, उतारी, सारी, भारी और तुम्हारी पर ख़त्म होते हैं। और अब आइए आज की तीसरी किताब की जानिब। यह है पहेली नामा। पहेली नामा 8 सफ़ों की किताब है और 104 साल पहले दिल्ली में छपी थी। यहाँ इस किताब के 4 मुख्तलिफ एडिशन मौजूद हैं। पहेली नामा को अल्ताफ़ रसूल ने मुरतब किया था। वो ख़ुद भी शायर थे, चुनांचे इस किताब में उनका कहा हुआ बंदर नामा भी शामिल है। उसी बंदर नामे के हाशिए में उन्होंने मुख्तलिफ शायरों की कही हुई पहेलियाँ इकट्ठी की हैं। पहेलियों का जिक्र सुनते ही जहन में अमीर खुसरो का नाम आता है। इस किताब के शुरू में अमीर खुसरो की बहुत सी पहेलियाँ नकल की गई हैं, लेकिन उसके बाद जो पहेलियाँ हैं उनके पढ़ने से पता चलता है कि दिल्ली के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफ़र ने भी पहेलियाँ कही थीं और उसी दौर के बुज़ुर्ग शायर हकीम आगा जान ऐश भी पहेलियाँ कहा करते थे और उनकी कही हुई पहेलियाँ पहली मरतबा इसी किताब पहेली नामे में छपी थीं। उनके अलावा किताब में हकीम तजम्मुल, रसूल खां तजम्मुल की पहेलियाँ और बहुत सी मुतफर्रिक पहेलियाँ भी शामिल हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तो हम अक्सर सुनते और पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको 104 साल पुराने पहेली नामे से दूसरे शायरों की कुछ पहेलियाँ सुनवाते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह जफ़र मरहूम की चंद पहेलियाँ। बावरसी एक नार जफर, वो सबके जी को भाती है, पंख न वाके पंखरू, बिन पंखों उड़ जाती है, पाँव न पाए वाने, बिन पाँव दौड़े आती है, रंग न देखा वाका, पर क्या क्या रंग दिखाती है। और इसका जवाब है हवा। एक ताबूत और कितने मुर्दे, कटे कटाए क्या दिल गुर्दे, ताल में पीवे काला पानी, रहे जफर नित उनकी निशानी। और इसका जवाब है कलम। सारी को जो कहे है आधा, ना ही कोई बूझे हारा। और ये आधा है नीम। एक नारी का मैलो रंग, लगी रहे वो पी के संग, उजियारे में संग बिराजे, अंधियारे में छोड़ के भाजे। इसका जवाब है परछाई। और ये पहेली है हकीम आगा जान ऐश की। इन्हीं की लीजिए कुछ और पहेलियाँ सुनिए। एक नारी के सर पर नार, पी की लगन में खड़ी लाचार, शीस धुने,
और चले न जोर, रो रो के वो करे है फोर। इसका जवाब है क्षमा। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये तो आप समझ ही गए होंगे, आसमान और तारे। दुबरी पतरी कामनी चिकनी चुपरी गाद, नेह में अपने पीव के रोए सगरी रात। इसका जवाब भी है क्षमा। एक मंदिर के 70 दर, हर दर में त्रिया का घर, बीच में वाके इमरत ताल, भूज उसकी है बड़ी महाल। ये है मक्खियों का छत्ता। और इसके बाद लीजिए एक और पहेली सुनिए। एक त्रिया है जल की बासी, निस दिन जल में रहे पियासी, जब उसके मुख पड़े है बूंद, डुबकी खाए मुंह को मूंद। इसका जवाब है मोती। बैठे बैठे बात बनाए, ऐसा पुरख वो कौन है भाई, बूढ़ा वाला जो कोई आए, उसके आगे शीश नवाए। जाहिर है हज्जाम। एक पुरुष का काला रंग, गोल शीश दो लंबे डंग, नार को अपनी लेत उठाए, प्यार करे और चिमटा जाए। इसका जवाब है चिमटा यानी दस्तपनाह। बांस बरेली से एक नारी, आई अपनी बंद कटारी, पीखुच उसके कान में फूंकी फूंकी, बोले वो सुन पी के मुंह की, आह पिया ये कैसी कीनी, आग बिरह की भड़का दीनी। इसका जवाब है फुकनी। और अब हैं कुछ और पहेलियां जो हकीम तजम्मुल रसूल खां तजम्मुल ने लिखी थीं। दो तालाब और कितनी तरियां, जब देखो तब नंगी खड़ियां, ताल के ऊपर दिन भर भटके, नजरों में वो सबके खटके, रात को वो सब मिलजुल कर सोती हैं तालाबों पर। इसका जवाब है आंखों की पलकें। दो नारी मिल नार कहाए, जाड़ा हो जब काम में आए, गर्मी में दे वाको उतार, कल का आला नाम विचार। और ये है दोशाला। और इसी पर हम आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में आज थी ईला अरुण। अब रज़ा अली आबदी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।